Simulation on exterior ballistics. So 4 equations. What is the first equation? dv by dt equal to minus g. बोल दीजिए जरा, what is the first equation? Minus g sine theta minus k v to the power n by m divided by m. This is our first equation. What is the second? delta theta d theta by dt equal to minus g cos theta by v. V. This is second. And what is the third? dx by Del- dt. dx by dt is equal to v cos theta, dy by dt is equal to v sin theta. Very good. These are the 4 equations. This is third, this is fourth. ठीक है, अब हम सिमुलेट कैसे करें प्रॉब्लम को, है ना? तो सिमुलेट करने के लिए देखिएगा, मैं एक टेबल बनाने वाला हूं यहाँ पर, है ना? तो v थीटा x y, v थीटा x y, ठीक है? v क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, x इज द x कोऑर्डिनेट, y इज द y कोऑर्डिनेट, ठीक? आप देखिए, फॉर स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू, छोटा सा टाइम लेता हूं, लेट द टाइम इज 0.01, बहुत छोटा सा टाइम ले सकता हूं. सो डेल्टा टी इज 0.01 सेकेंड या मिनट, जो भी मुझे लेना है. सो इट इज 0.05, वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है? यहां मैं डिफाइन कर देता हूं कि मैंने कुछ वैल्यूज फिक्स की हुई हैं. इनिशियल प्रोजेक्शन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल है, सो इट इज v0 एंड दिस इज थीटा 0, दिस इज phi और phi 0. So v0 is 30 meters per second, theta 0, phi 0 is 30 degree, ठीक है? g equal to 9.81, g की मुझे जरूरत पड़ेगी, meters per second square, unit compatibility. I need constant k, let this constant is 0.001. velocity, initial velocity I am already knowing, 30 meters per second. बाकी जो भी वेलोसिटी होंगी वो सब कैलकुलेट हो जाएंगी. सो इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट A इज नोन, and after 0.01 second let the point is B, then velocity at point B can be found with the help of these formulas. And B can be found at point C, at point D, at point E, F, G, H. Infinite number of points are there in the root of the projectile. So I am interested in finding all the velocities, all the x coordinates, all the y coordinates, all the angle of projections. Everything I want to know. So these are just initial parameters, v0, phi0, g, k. Sir, m And की mass of the projectile, like 30 kg that I need, है ना? बस और क्या चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए. टाइम हमारे पास है, g हमारे पास है, कांस्टेंट हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एवरीथिंग वी नो. सो दिस इज द डाटा we will use. Initially we will start from this data. So what is the value of n? Yes, What is the value of n? n, yes, V to n the power n. is to retarding force I have already given. So retarding force is kv to the power n. V is the velocity, n is the power of velocity, so n equal to 2. ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो n equal to 2. चलिए, और कोई पैरामीटर आएगा तो उसे बाद में डिफाइन कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? सो इनिशियल वेलोसिटी इज 30 meters per second. कैलकुलेटर लेके बैठिएगा. v is 30. What is the angle of projection? What is the initial angle of projection? Initial angle of projection is 30 degree. So this is 30 degree. What is initial x coordinate? So projectile is starting from the ground. So at this point, the x coordinate is 0 and y coordinate is also 0, because it's starting from the ground. If we are not starting from the ground, then these values will be different.
So I am assuming that projectile is fired from the surface of the ground. So x equal to 0 and y equal to 0 initially. So x is 0, y is 0. लाइन समझ में आ रही है? Now, अब क्या करूंगा मैं? अब देखिए dv by dt. So my time is very small. The time is delta t. So I can write this equation as delta v equal to minus g sine theta minus k v to the power n divided by m whole bracket closed multiplied by delta t. This dv by dt, because my time is very small, so I can write it as delta v by delta t. Change in velocity, change in time. Delta t goes to right side, so it is in multiplication form. So delta v equal to this much. Now, this is minus 9.81 sine theta. What is theta? Theta is 30 degree. Minus k. What is k? K is 0.001. What is velocity? Velocity is 30 meter per second. To the power n. What is n? N is 2. Divided by m. What is the mass of the projectile? Mass of the projectile is 30 kg. So it is 30 whole bracket close multiplied by delta t. What is the value for delta t? Delta t is 0.01. So I have the change in velocity. What is delta v? Delta v is the change in velocity. So by this formula, I can find the change in velocity. Initial velocity is 30. Let the change is minus 0.1. Then what is the net velocity after 0.01 second? 30 minus 0.01. For example, so first calculate delta v. कितना आ रहा है? सॉल्व करिए जरा इसे. डेल्टा v को सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. सर 4.935. प्लस या माइनस? सर प्लस में आ रहा है. प्लस कैसे आ जाएगा? माइनस. सर माइनस में आ रहा है. सॉरी माइनस. बोथ द टर्म्स आर माइनस. सर पॉइंट माइनस में 0.04935. माइनस में 0.04935. प्रत्युष चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग, क्या ये सही है? माइनस 0.04935. हाँ सर, ये वाला सही है. ये सही है ना? Yes. So this is the change in velocity. So I am using over here delta v. So delta v is coming. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको. Delta v ये आ रहा है minus 0.04935. 0494 कर लेते हैं. 35 को 94 कर लेते हैं राउंड ऑफ. 0.0494. 4-digit accuracy is sufficient. So delta v is available by first equation. Okay. Now come to the second equation. From second equation, I can find delta theta. So I am writing delta theta equal to minus g cos theta divided by v multiplied by delta t. Correct? Same logic. Delta theta by delta t equal to minus g cos theta divided by v. So just put the values. Minus 9.81 cos of 30 divided by velocity. What is the velocity? Is 30. What is the time? Time is 0.01. Solve it. What is delta theta? सर माइनस 0.001635. Minus 0.001635. 1635 है ना? तो चलो 160 मान लेते हैं. 4 डिजिट तक चलेंगे है ना? 0.0016. So I am writing over here delta theta minus 0.0016. क्लियर? तो सेकंड इक्वेशन से हमने क्या कर लिया? डेल्टा थीटा कर लिया. पहले इक्वेशन से हमने डेल्टा v फाइंड कर लिया. दूसरे इक्वेशन से हमने डेल्टा थीटा फाइंड कर लिया. अब थर्ड इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे डेल्टा x. डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x कोऑर्डिनेट. चेंज इन x कोऑर्डिनेट.
तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहां से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, दिस इक्वेशन विल बी चेंज इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू v cos theta multiplied by delta t. So what is the value of v? V is 30, cos of 30 into delta t is 0.01. Calculate what is delta x. सर हाँ, सर डेल्टा थीटा की वैल्यू ये नहीं आएगी सर। अच्छा कितनी आ रही है? So Sir- 0.0028319. ओके, तो check करिए, जो हम पहले बताया वो भी चेक करिए जरा एक बार, है ना? मेरे पास भी कैलकुलेटर है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? सो इट इज कमिंग 9.81 cos of 30 divided by 30 yes sir, yes sir, yes. into 0.01, so it is coming 0.00028, yeah, है ना? So it is 0.000 नहीं 0028, यही बता रहे थे आप? ये ठीक है? सर यही आ रही है डिग्रीज में, है ना? 0.0028 डिग्रीज। हाँ, तो पहले जो बताया वो थोड़ा कैलकुलेशन आप सही करिए, है ना? एरर फ्री कैलकुलेशन होनी चाहिए। 0.0028 डिग्रीज। सो नाउ कम हियर, व्हाट इज डेल्टा एक्स? 30 cos 30 into 0.01, सॉल्व करिए जरा, कितना आ रहा है? 30 cos 30 into 0.01, सर 0.2598। 0.2598, ठीक है? अब डेल्टा वाई बताइए। तो डेल्टा इस फोर्थ इक्वेशन से हम डेल्टा वाई निकाल देंगे। सो डेल्टा वाई इज गिवन बाय v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। 0.15. यस, 30 sin 30 into 0.01, so it is 0.15। सही है? 0.15। So now write these values here. So it is delta x and delta y. So delta x is 0.2598 and delta y is 0.15. Okay. तो ये हमारा एक कॉलम ले सकते हैं हम, सीरियल नंबर, ठीक है? सीरियल नंबर फर्स्ट, है ना? या यहाँ पे टाइम भी ले सकते हैं, है ना? वी कैन टेक द टाइम, है ना? पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाए या सीरियल बढ़ता जाए, जैसे भी आप करना चाहें। तो अब देखिए क्या करना है। we have started from v theta xy initial values. These are the changes in the values after time 0.01 second, after a time interval of 0.01 second. So with these four changes, these values can be updated, है ना? These values can be updated. So what is the updated value here? Initial value 30, change is 0.0494. So update value is 30 minus 0.0494. Solve करिए, कितना है? अपडेट वैल्यू क्या होगी? v प्लस डेल्टा v। v is 30, डेल्टा v minus 0.0494। तो आपको v प्लस डेल्टा v बताना है, कितना आएगा? 29.9506. 29.95। गुड। अब थीटा को अपडेट करिए, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। 29.997. 29.997। x को अपडेट करिए, x प्लस डेल्टा x। ठीक है? y को अपडेट करिए, y प्लस डेल्टा y। ठीक है? तो यदि इनिशियल टाइम 0 सेकंड था, है ना? यहां टाइम ले लेता हूं मैं, तो 0.01 सेकंड के बाद वेलोसिटी ये हो गई, एंगल ये हो गया, x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हो गया। करेक्ट? यहां तक क्लियर हुआ? राइट? ऐसे ही 0.02 सेकंड पे क्या वैल्यूज हो जाएंगी? ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इन चेंजेस को कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा भी कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट होगा? फर्स्ट इक्वेशन से।
डेल्टा थीटा सेकंड इक्वेशन से, डेल्टा एक्स थर्ड इक्वेशन से, डेल्टा वाई फोर्थ। रिपीट करना है प्रोसीजर, ठीक है। तो हम केवल 2-3 स्टेप करेंगे, उसके बाद फिर इसको आपको कंप्यूटर सिमुलेशन से करना है, ठीक है। तो एक Sir? स्टेप हमारा हो चुका है, Sir? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो Hello. अब इन वैल्यूज को बताइए कि ये डेल्टा भी कितना है। Sir? हाँ सर ये जो x निकाला है 29.997। हेलो, हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा ये हूँ, जो गुस्सा मत x करो। निकाला है 29.997 सर, इसमें 30 प्लस होगा ना 0.2598 में। 0.2598 तो ये देखो डेल्टा एक्स है, यस तो सर। डेल्टा एक्स तो 0 में प्लस होगा, एक्स में डेल्टा एक्स जोड़ेंगे ना। ओके ओके सर। हाँ, एक्स को डेल्टा एक्स से अपडेट जोड़ेंगे तो एक्स अपडेट हो जाएगा, वाई को डेल्टा वाई से जोड़ेंगे तब वाई अपडेट हो जाएगा, थीटा ओके डेल्टा ओके थीटा से अपडेट होगा, बी डेल्टा बी से अपडेट होगा। 4 पैरामीटर्स आ गए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब चलिए दोबारा से यही फॉर्मूला यूज करना है। तो अब देखो g की जगह -9.81 रहेगा, साइन थीटा, थीटा कितना हो गया हमारा 29.9506, तो ये 30 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी अब आपकी। तो अब हो जाएगा साइन 29.9506 माइनस के में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी ये थीटा की वैल्यू 29.797 है ना, तो 29.997 और v वैल्यू इज 29.9506, इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय m इज 30 इनटू डेल्टा t 0.01। फिर से समझिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं करंट वैल्यू यूज कर रहा हूं, है ना। थीटा मेरा पहले 30 था, लेकिन अब तो 29.95 है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग थीटा 29.997, करेक्ट, माइनस के में कोई चेंज नहीं है, के तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो हर स्टेप पे सेम रहेगा। वेलोसिटी पहले 30 थी, लेकिन अब 29.9506 हो गई, डिवाइड बाय मास कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, चेंज इन टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, सो इट इज 0.01। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, चलाइए कैलकुलेटर। और एक एग्जाम में समय बहुत कम पड़ता है कैलकुलेशन में, तो इसमें एक फंक्शन होता है कैल्सी, ठीक है, कैल्सी फंक्शन का यूज किया करिए। कैल्सी फंक्शन यूज करना आता है सभी को, कितने लोग को आता है? सागर शर्मा, माइक सही नहीं है अभी आपका। रोहित परिहार, मोहिनी देवी, यस सर। हाँ, आपको कैल्सी फंक्शन यूज आता है? कैल्सी कैल्सी होता है, नहीं सर, नहीं आता। हाँ। तो कैल्सी फंक्शन से क्या है कि हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, इस कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, है ना। और डालने के बाद हम थीटा के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, कभी 30 प्रोवाइड करेंगे, कभी 29.95 प्रोवाइड करेंगे, है ना। थीटा और वी, केवल यही दो तो चेंज हो रहे हैं, थीटा और वी, थीटा और वी के लिए वैल्यू बदलते जाएंगे और हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाती है ऑन क्लिक। टाइम बहुत बचता है कैलकुलेशन, हर बार फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ता है आपको, एक बार फॉर्मूला टाइप करिए, ठीक है, और एक बार फॉर्मूला टाइप करके जस्ट वैल्यू देने से ही आंसर मिलते चले जाते हैं। तो यू कैन सेव योर टाइम इन द एग्जाम्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कैल्सी, ठीक है। थोड़ा बुकलेट पढ़ लेना कैलकुलेटर, बहुत आसान है, बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये वाले बटन यूज होते हैं। ये देखो, इसमें आपने देखा होगा रेड कलर में एक्स और वाई लिखा हुआ है ना नीचे, उन वो वाले फंक्शंस यूज होते हैं इस अल्फा फंक्शन के साथ, जो मोड शिफ्ट के बगल में अल्फा है, अल्फा एक्स और वाई, इन 3 बटनों से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कर लेना, थोड़ा सा कोई मैनुअल देख लेना या कुछ भी हेल्प लेना किसी से, नहीं होगा तो फिर मुझसे हेल्प ले लेना। डेल्टा बी ये कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ। हाँ सर -0.0493
हाँ बस बहुत है, इतना ही बहुत है 4 अंकों तक, है ना। तो माइनस 0.0493। अब डेल्टा थीटा बताओ, तो डेल्टा थीटा के लिए फिर से वही फॉर्मूला, वैल्यू बदल जाएंगी। सो माइनस 9.81 cos थीटा, थीटा इज 29.997 डिवाइडेड बाई v, v इज 29.9506 into 0.01। सॉल्व करें बस, you have to take care that you have to use the latest values, है ना। थीटा का लेटेस्ट वैल्यू यूज करना है, तो लेटेस्ट वैल्यू क्या है 29.997। ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वैल्यूज। सो व्हाट इज कमिंग डेल्टा थीटा, सॉल्व करिए। कैलकुलेटर लेके बैठा करिए क्लास में, सर ने लिखा नहीं जब तक तो आंसर बता दो कि हाँ सर इतना इतना आया गुणा भाग करके। The minus point- point हाँ माइनस पॉइंट, बोलिए। 00 हाँ 2836 28 मान लेते हैं, तो पॉइंट माइनस .0028 है ना। अब डेल्टा एक्स बताइए इस फॉर्मूले से, डेल्टा एक्स 0.259 यूज करनी है, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v का लेटेस्ट वैल्यू, v का लेटेस्ट वैल्यू 29.9506, थीटा का लेटेस्ट वैल्यू 29.997 और डेल्टा टी कितना है 0.01। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, So 0.25938 कितना 0.25938 25938 है ना, 938 को 94 मान लेते हैं ना, तो 0.2594 0.2594। अब ऐसे डेल्टा वाई बता दीजिए 0.149 कितना 0.149 0.149, तो इसको हम लिख देते हैं 0.149, ये हो गई वैल्यू 0.01 पे, करेक्ट। अब नेक्स्ट लाइन में बताओ यहाँ क्या आएगा, अपडेटेड वैल्यू। तो अपडेट वैल्यू क्या होगी, b प्लस डेल्टा v, है ना, इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा 29.9013 29.9013। थीटा प्लस डेल्टा थीटा करिए 29.994 994। एक्स प्लस डेल्टा एक्स करिए 0.519 वेरी गुड। वाई प्लस डेल्टा वाई करिए 0.2997 गुड, हो गया। और इन द सिमिलर फैशन यू कैन फाइंड दिस 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 दिस, ठीक है। अब इनको फाइंड करने में फिर लेटेस्ट वैल्यू यूज करनी है, तो अब ये लेटेस्ट वैल्यूज हैं, ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वैल्यूज, ठीक है। जैसे ही आपको ये 4 वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना, तो आपका टाइम कहां पे पहुंच जाएगा 0.03 पे, और जैसे ही आपको ये 4 वैल्यू मिल जाएंगी, फिर आप दिस प्लस दिस करेंगे तो आपको ये अपडेट वैल्यू मिल जाएगी, दिस प्लस दिस वैल्यू, दिस प्लस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये चारों मिल जाएंगी। With the help of these 4, you can find again changes in these 4. And after finding changes, you can update these values again. And so on. मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे चलेगा 0.04 this या। तो अब ये आपको सिमुलेशन मैनुअली, तो 4-5 स्टेप तक ही हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे, है ना, 4-5-6 ज्यादा 10 स्टेप यूज कर सकते हो आप। तो अब इसको प्रॉब्लम को आपको सिमुलेट करना है फॉर 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, कितना मिनट तक सिमुलेट करना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में बताओ कितनी लाइन आएंगी आपके प्रॉब्लम में, हाउ मेनी लाइंस बताओ, कौन बताएगा। 5 मिनट में कितनी लाइंस आ जाएंगी, नहीं बता पाओगे, बताओ। देखो 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 300 सेकंड, है ना, और हमारा टाइम इंटरवल 0.01 सेकंड का है, तो 300 डिवाइड बाई 0.01 कितनी लाइन हो गई 30,000, 30,000 लाइन्स हो जाएंगी आपकी, 30,000।
एंड 5 मिनट का सिमुलेशन आपको 30,000 लाइंस मैनुअली इज नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू डू दिस बाय मैटलैब प्रोग्रामिंग और एनी अदर लैंग्वेज और एक्सेल, किसी में भी करके दिखाइए. फॉर्मूले लगाने हैं, ये 4 फॉर्मूले जो बताए हैं वही लगाने हैं. एक्सेल में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगा दीजिए, सी में लगा दीजिए, C++ में लगा दीजिए, बट करके दीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए इसका सिमुलेशन. ठीक है, 5 मिनट है, बहुत ज्यादा लग रहा है तो चलो 1 मिनट तक सिमुलेट कर लो. 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी लाइंस आएंगी बोलो. 600 नहीं 6,000 या 600? 6000 6,000 लाइंस आएंगी, है ना. तो आप एक काम करो, आप टाइम इंटरवल को 0.01 की जगह 0.1 ले लो. टाइम इंटरवल बढ़ा दो, 0.01 की जगह 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल लो. ठीक है, और फिर प्रॉब्लम को 2 मिनट के लिए सिमुलेट करो, तो कितनी लाइंस आएंगी बताओ. चलो 0.1 का टाइम लेकर 2 मिनट के लिए प्रॉब्लम को सिमुलेट करें तो कितनी लाइंस आएंगी. सर 1200 कितनी? 1200 यस, 2 मिनट मतलब 120 मिनट, 120 सेकंड्स, 120 डिवाइड बाय 0.1, तो 1200 लाइंस आ जाएंगी आपकी. 1200 लाइंस. यदि मैं टाइम को 0.2 कर दूं तो अब कितनी लाइंस आ जाएंगी. सर 600 यस, और 0.5 कर दूं तो हाँ 0.5 कर दिया. सर 240 कितना आ जाएगा? 240. 240 240 लाइंस, है ना. तो चलो ये तो रीजनेबल होगा. 240 लाइंस तो स्टडी की जा सकती है प्रॉपर वे में. ठीक है, तो ये आप मुझे ये सिमुलेट करिए, है ना. तो अब आपके लिए असाइनमेंट जो है उसे नोट कर लीजिए आप क्लियर. ये मत कहना कि हमें असाइनमेंट पता नहीं, सभी के लिए असाइनमेंट. अदरवाइज आपको ध्यान रखना, प्रॉपर मतलब असाइनमेंट आने चाहिए आपके. असाइनमेंट एक्सट्रीम इलास्टिक्स में टाइम इंटरवल आपको लेना है 0.5 सेकेंड. ठीक है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम 30 kg, n इक्वल टू 2, कांस्टेंट 0.001. ठीक है, और क्या चाहिए? G 9.81 एज यूजुअल होता ही है. और क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी v0 30 एज यूजुअल जो हमने लिया है, थीटा 50, इनिशियल 30 डिग्री, है ना. टाइम हो गया 0.5 सेकंड. और कितने टाइम के लिए सिमुलेट करना है? सिमुलेट द प्रॉब्लम या सिमुलेट द प्रोजेक्टाइल फॉर सिमुलेट द प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर 2 मिनट्स. नोट कर लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए इस असाइनमेंट में. कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, बट काम होना है. यस, प्रत्युष कुमार गर्ग, क्या आप इस प्रॉब्लम को सिमुलेट कर पाएंगे 2 मिनट के लिए? यस सर, कर लेंगे. वेरी गुड, है ना. और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं, मुझसे आप डिस्कस करिएगा, आई विल हेल्प यू. किसी में मेरी तरफ से छूट है, आप किसी में भी कर लीजिए. यू डू इट इन एक्सेल और मैटलैब और सी और C++ और भी कोई भी लैंग्वेज हो आपके पास, है ना, फोर्ट्रान जो भी हो आप कर डालिए, किसी भी उसमें करके दिखा दीजिए. लॉजिक तो सभी में एक से होते हैं, है ना. आपको मैनुअल इसलिए करके दिखाया है सो दैट आपको फॉर्मूला लगाने में इजी रहेगा. कब कौन सी वैल्यू किस में कहां से कैलकुलेट होगी, कहां ऐड होगी, कहां सब्ट्रैक्ट होगी, है ना, कहां पे शिफ्ट होगी, वो सब आपको व्हेन इट इज क्लियर इन योर माइंड देन यू कैन मेक द लॉजिक,
है ना। फॉर्मूले जब ही लग पाते हैं, अन्यथा फॉर्मूले नहीं लगते हैं जब तक लॉजिक क्लियर नहीं है। So I close this topic here. Simulation on exterior ballistics. ठीक है, हम काफी केमिकल रिएक्टर का सिमुलेशन कर चुके हैं, बैलिस्टिक का कर चुके हैं, है ना, फाइटर बॉम्बर का कर चुके हैं, इंटीग्रल वैल्यू का कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ पाई का कर चुके हैं, रैंडम वॉक प्रॉब्लम का कर चुके हैं। लॉट ऑफ कोर्स वी हैव कवर्ड, है ना। थोड़ी सी एग्जाम पे बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न। केमिकल रिएक्टर का भी सिमुलेशन करिएगा, स्टडी पॉइंट निकाल के मुझे सेंड करिएगा व्हाट्सएप पे। 2 असाइनमेंट है आपके पास। और देखो, आपके पास असाइनमेंटों को आप ध्यान रखा करिए, मुझे याद न दिलाने पड़ेगा। असाइनमेंट 1 केमिकल रिएक्शन का आपको एक्सेल में किसी में भी सिमुलेट करके भेजना है, नंबर 1 असाइनमेंट। नंबर 2 ये व्हाट्सएप करिए या मेल करिए, है ना, जो भी कर रहे हैं व्हाट्सएप कर दीजिए, इट इज सफिशिएंट। दूसरा आपको बैलिस्टिक का करना है, 2, है ना, अभी 2 ही कर लीजिए, हैं तो बहुत सारे हैं। आपको फाइटर बॉम्बर का भी करना चाहिए, है ना, केमिकल सबका करना चाहिए आपको। बैलिस्टिक का ये 2 करिए आप। तीसरा, जो लॉगिन में असाइनमेंट गए, लॉगिन में अब तक कितने असाइनमेंट जा चुके हैं आपके, बताइए। दूसरा और आ गया है सर। हाँ, पहला गया था प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है, जो कि चेक भी हो चुका है ना, उसके मार्क्स मिल चुके हैं, और जो जिन्होंने सबमिट नहीं किया था उनका एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें एक बच्चा है, कौन, सागर शर्मा, उसने बाद में ज्वाइन किया है, तो उसके लिए हमने उसको असाइनमेंट मिल गया। सागर माइक अनम्यूट करिए अपना। यस सर, मिल गया असाइनमेंट, है ना। तो आपको ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला असाइनमेंट मिल चुका है। तो आपके लिए, क्योंकि आपका एडमिशन लेट हुआ, तो आप इसको मुझे मेल पे सबमिट कर दीजिए सॉल्व करके, है ना, raj.sharma@gla.ac.in, ठीक है। सागर, इसको सबमिट करिए। दूसरा असाइनमेंट अपलोड हो चुका है आपके अकाउंट में, लॉगिन में, और वो बेस्ड है किस पर, रैंडम नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। और जितने भी रैंडम नंबर के टेस्ट वगैरह थे, पोकर टेस्ट था, है ना, जितना भी हमने पढ़ाया उस पर, इसमें करीब 20 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस को आपको सबमिट करना है, और उसकी लास्ट डेट है 3 दिसंबर, ठीक है। तो ये लॉगिन से सबमिट करने हैं, ये व्हाट्सएप पे सबमिट करने हैं, क्लियर है। और डेट का ध्यान रखिए, ये एक्सपायर होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला। इसमें 2 लोग रह गए थे, उनके असाइनमेंट सबमिट नहीं है, वो एक्सपायर्ड है ना। ध्यान रखिए कि आपका असाइनमेंट एक्सपायर्ड ना हो, टाइम से पहले सबमिट हो जाए। सागर शर्मा, इसमें टाइम नहीं मिलेगा आपको, केवल इसमें टाइम मिला बिकॉज आपका एडमिशन बाद में हुआ था। तो ये कुछ हुई असाइनमेंट की बात। असाइनमेंट में कोई भी डाउट हो, है ना, तो हम लोग किसी एक क्लास में असाइनमेंट पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। कल हमारी 2 क्लासों में, एक क्लास में हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोटा मोटा, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आप एक मोटा मोटा आइडिया दे देंगे क्या करना है, राइट। 20 क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम। अभी ऑनलाइन एग्जाम होंगे आपके, 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव होंगे, एक मल्टीपल चॉइस होंगे, और एक शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगी, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी संख्या होगी मिल जाएगी, 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव में, है ना। 1 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे। मल्टीपल चॉइस में 1 से अधिक आंसर सही हो सकते हैं, है ना। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे,
मल्टीपल चॉइस वाले। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, है ना। जैसे अभी एक्सटीरियर बैलास्टिक किया, बोले इसके 2 स्टेप सिमुलेट कर दो, तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी b थीटा xy b थीटा xy। टाइपराइटर होगा वहां पर, एडिटर में टाइप करके आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी टेबल में, आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी सिमुलेशन क्वेश्चन या रैंडम नंबर जनरेशन क्वेश्चन या पोकर टेस्ट का क्वेश्चन या स्काल्मोगोरोव का क्वेश्चन या वैल्यू ऑफ समथिंग, कितना सारा हमने सिमुलेशन में स्टडी किया, वहां कहीं से भी 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं शॉर्ट सम में। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, 5 दिसंबर आपकी क्लासेस एंड है, एंड टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, है ना। जब आप असाइनमेंट को प्रॉपर्ली सबमिट करेंगे तो असाइनमेंट से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्जाम प्रिपरेशन असाइनमेंट से हो जाती है, असाइनमेंट पूरा किया प्रिपरेशन हो गई अपने आप। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं, वो आपके पास स्कीम आ जाएगी, कितने नंबर का पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, मल्टीपल चॉइस कितने होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, ये 3 कैटेगरी। ठीक है, एग्जाम का कुछ आइडिया लग गया आपको? सर क्लास 5 दिसंबर से बंद हो जाएंगी? हाँ, क्लास आपकी फर्स्ट मॉड्यूल की एग्जाम की क्लासेस 5 दिसंबर। ओके सर। ठीक है, तो फर्स्ट मिड का सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है ना। एक 2 क्लास में हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, कहीं पर कल हम जो है थोड़ा सा असाइनमेंट पे बात करेंगे और क्विज पे बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, है ना। बस मैं आपसे थोड़ी ये सपोर्ट चाहता हूँ कि आप असाइनमेंट को टाइम दीजिए और थोड़ा सा अपने हाथ पैर मारिए सिमुलेशन में, है ना। जो भी असाइनमेंट दिया जाए थोड़ा करके देखिए, एक्सेल में फॉर्मूले लगा के देखिए, जूझिए प्रॉब्लम से, है ना। तो जूझते हैं ना, पूछते हैं और ना बेचते हैं, इस चीज से दुख होता है। ठीक है, एमटेक कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, बनाइए, भेजिए, प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करिए। ठीक है, करेंगे सब लोग? यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं एंड करूंगा क्लास। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।